So today we are going to start the unit cell, and in that chapter 8 NCRT class 11th, and that chapter has basic introduction about cell. That cell is the basic unit of life that we all know, and in class ninth also this chapter was there, the structural and functional unit of life, the cell. So in 11th it is more detailed, it is given. You can see that cells types are given: prokaryotic, eukaryotic cells. Then organisms are given: multicellular and unicellular organisms. Then cell membranes, cell wall, cell organelles. One by one, each cell organelle is discussed in this chapter: chloroplast, mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, and then chromosomes are explained. Okay, and we can see in the NCRT also that what is given in the NCRT about this chapter. So cell structure and function, this is given here, and it has 3 chapters. The unit cell has 3 chapters. Number 1, cell, the unit of life. Chapter 9, biomolecules. Chapter 10, cell cycle and cell division. So in that we have to cover these chapters one by one. So it is written in about introduction. It is written: biology is the study of living organisms, and the detailed description of their forms and appearance only brought out their diversity. It is the cell theory that emphasized the unity underlying this diversity of forms. That is the cellular organization of all life forms. Means whether the organisms are multicellular or unicellular, they composed of cell. They are one at the cellular level. Cellular level is a basic for the life to exist. This is the thing. The description of cell structure and cell growth by division is given in chapters comprising this unit. Cell theory also created a sense of mystery around living phenomena, that is physiological and behavioral. So previously, when cell theory was not known, everyone was very confused about how the or why any living organism behaves as he behaves. What is the basis? But when the cell theory come into existence, it was given by 2 scientists, basically Skeman and Schleiden. Skeman and Schleiden gave the cell theory, and one more modification of cell theory was given by the Rudolf Virchow. Third scientist, Rudolf Virchow, gave another statement of the cell theory. You will study about the cell theory in the upcoming next topics of this chapter. This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be demonstrated or observed. In studying the underlying physiological and behavioral processes, one can take a physiochemical approach and use cell-free systems to investigate. So if we want to understand that how the things work, because physiology is more related to work, and whatever is going on inside any organ, like how the liver is detoxifying the drugs, what special enzymes are there in the liver cells which are not present in the another organ cells, that make liver a detox machine, how it can make harmful drugs into harmless things. So what are the basic structural differences? To study them, if we want to study them, we can study them in the cell-free systems, also in the in vitro experiments also. So the working which is going on inside the cells can be demonstrated outside the cells also. This approach enables us to determine the various processes in molecular terms. So this also tells us that everything has a chemical basis. Everything is a molecular reaction. The approach is established by analysis of living tissues for elements and compounds, and it will tell us what type of organic compounds are present in living organisms.
And living organisms are also having a chemical basis, and they are also made up of biomolecules. So all the living organisms are having lipids, proteins, carbohydrates, and the sugars. Carbohydrates means basically sugars and nucleic acids. They are DNA, RNA. So they are the elements and compounds of which the living organism is made. It will tell us what type of organic compounds are present in living organism. In the next stage, one can ask the question, what are these compounds doing inside the cells? And in what way they carry out gross physiological processes like digestion, excretion, memory, defense, recognition. In other words, we answer the question that what is the molecular basis of the physiological processes can also explain the abnormal processes that occur during a disease condition. So, for example, we know that these molecules are not only they are making us, but they are also responsible for the correct functioning of the body. They are also responsible if we are having any disease. सो एग्जाम्पल एल्जाइमर डिजीज होती है जिसमें मेमोरी जाती रहती है, जो ओल्ड एज में आती है, जिसमें जो पर्सन होता है वो अपनी मेमोरी को खोता रहता है. एक्चुअली में इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से एक अजीब सा अनटेंगल्ड प्रोटीन बनने लगता है. इंटेंगल्ड प्रोटीन जिसे बीटा अमोलॉइड कहते हैं. वो अमोलॉइड प्रोटीन क्या करता है, प्लेक्स बनाने लगता है और न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को वीक करने लगता है. न्यूरॉन्स के बीच बीच में जाकर साइनाप्सिस पे वो बीटा अमोलॉइड का प्रोटीन स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से कुछ भी याद नहीं रहता है ऑर्गेनिज्म को. अपनी फैमिली को भी पहचानना भूल जाता है बुढ़ापे में ऑर्गेनिज्म. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का इतना बड़ा रोल है कि डिजीज कंडीशन को भी समझाने में, एबनॉर्मल प्रोसेस अगर कोई बॉडी हो रही है उसको भी समझाने में हम लोग यूज कर सकते हैं. तो बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर इस यूनिट का. दिस फिजिकोलॉजिकल फिजिकोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. इस तरीके की स्टडी को जिसमें मॉलिक्यूल से हम लोग बायोलॉजी समझते हैं या प्रॉब्लम समझते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं. The concepts and technique of physics and chemistry are applied to understand biology. इसमें हमें, अगर हम ब्रेन के इमेजेस देखना चाहते हैं तो हमें इसमें मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी, फिजिक्स यूज करनी पड़ेगी, और फिर हमें उसके मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इमेजेस जैसे सीटी स्कैन वगैरह होता है, एमआरआईज होते हैं, वो सब देखकर हमें उसका पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या अप्रोच है, क्या प्रॉब्लम हुई है. केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शंस देखने पड़ेंगे, एंड तब बायोलॉजी समझ में आएगी. इन चैप्टर 9 ऑफ दिस यूनिट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइडेड. नेक्स्ट चैप्टर में आप ये पढ़ते हो. और फिर सेल डिवीजन और सेल साइकिल का आता है. सेल साइकिल और सेल डिवीजन भी आप पढ़ते हो कि सेल दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, मायोसिस और माइटोसिस. जीएन रामचंद्रन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स पे बहुत बड़ा काम किया था. और उन्होंने नेचर नाम की मैगजीन में, जो कि बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस मैगजीन है, 1954 में उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट नाम का एक साइंटिफिक पेपर दिया था, जिसने स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन शो किया था. He was born on October 8, 1922 in small town not far from Cochin, south western coast of India, and his father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in sharpening Ramchandran's interest in mathematics. After completing his school years, Ramchandran graduated in 1942 as a top-ranking student in the BSc Honours Physics course of University of Madras. He received a PhD from Cambridge University. While at Cambridge, Ramchandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publications on the models of alpha helix and beta sheet structures that directed attention to solving the structure of collagen. Collagen एक प्रोटीन होता है, ट्रिपल हेलिक्स होता है, इसमें ट्रिपल अल्फा हेलिक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, उससे कोलेजन बनता है. एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78. तो इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको एक साइंटिस्ट के बारे में, जीएन रामचंद्रन के बारे में बताया हुआ है, और इनके वर्क को रामचंद्रन प्लॉट भी कहते हैं. तो इस तरीके से बायोलॉजी सिर्फ बेसिक बायोलॉजी नहीं ना होकर फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी डील करती है. साथ में ये साइंस इंटीग्रेटेड साइंस होती है. तो आप इसीलिए जब सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हो तभी आपको बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, बायोलॉजी भी अच्छे से समझ में आती है. अब चैप्टर 8 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living?
or what is that at an inanimate thing does not have which a living thing has. तो जब भी हम किसी भी अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को आराम से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। हम ये जान पाते हैं कौन सी चीज जिंदा है, कौन सी चीज नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ लाइफ की प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स होते हैं। All organisms are composed of cells. Some are composed of single cells and called unicellular organism, while other are composed of multicellular organism. Many cells are called multicellular organisms. कुछ सिंगल सेल के बनते हैं, सारा काम सिंगल सेल ही करता है उनकी बॉडी में, और कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी में तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स काम कर तरह तरह के सेल्स अलग अलग काम करते हैं। ओके, now we will move to the next topic. So what is cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. दोनों काम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है वो, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और सारे एसेंशियल काम भी जो भी लाइफ के हैं वो भी एक सेल पूरा कर सकता है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल अगर ना हो तो कोई इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उससे ही काम हो पाता है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने लेटर में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। इन्वेंशन माइक्रोस्कोप का जब बेटर होने लग गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक अच्छे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप हो गए, तो फिर उसके बाद हमें सेल्स की ऑर्गेनेलीज पता चलने लग गई। सेल की कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तब हमें उनके स्ट्रक्चर्स पता चले। सेल थ्योरी जो मैं आपको बता रही थी, सेल थ्योरी किसने दी? मैथलिस शिल्डन एंड जर्मन बॉटनिस्ट था, और उसने 1838 में प्लांट्स को के बहुत सारे तरह तरह के प्लांट्स के सेल्स देखे, टिश्यूज देखे, और उसी टाइम पे थियोडर शेवान ने 1839 में, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जो था, उसने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल सेल्स देखे और रिपोर्ट किया सेल्स को कि सेल्स के पास एक आउटर लेयर होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये भी कंक्लूड किया अपनी स्टडीज के बेसिस पे कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज सारे स्केवान ने मिलकर एक, on the basis of Skevan proposed a hypothesis that body of animals and plants are composed of cells. तो स्क्वान और शील्डी ने दोनों ने बोला कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों की जो लाइफ होती है, दोनों की जो बॉडी होती है वो सेल्स की बनती हैं। और श्यान ने ये बोला कि शील्डी एंड श्वान ने दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी। ये थ्योरी हाउएवर ये नहीं बताती थी कि सेल्स की तो बनी ही है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला स्टेटमेंट ये था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकंड स्टेटमेंट पर इसका रीजन नहीं था। थ्योरी जब तक वैलिड नहीं होती, जब उसका कोई रीजन नहीं दिया जाए, तो सेल्स की बने होते हैं, पर वो सेल्स आते कहाँ से वो नहीं दिया था श्लेडन और स्केवान ने। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में सिर्फ ये बोला था कि सेल्स के बने होते हैं। तो रेडोल्फ बर्को नाम के साइंटिस्ट ने 1855 में एक और स्टेटमेंट उसमें जोड़ दिया, omnis celluli a cellulae, that means new cells are formed from the pre-existing cells। कि नए सेल्स हमेशा पुराने सेल से ही आते हैं, उसी से बनते हैं। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory to a final shape. Cell theory as understood today is, cell theory के आज जो points हमें पता है वो given है। All living organisms are composed of cell, ये cell theory का point है। Then second point है, all cells arise from pre-existing cells। सारे cells pre-existing cells से ही बनते हैं, यानी नए सेल्स पुराने सेल से आते हैं। एक ओवरव्यू सेल के बारे में क्या होगा कि सेल
कैसा होता है, हमने अर्लियर ऑब्जर्व किया है सेल को अनियन पील में, जब हमने 9th क्लास में स्लाइड बनाई होगी या स्लाइड देखी होगी, या ह्यूमन चीक सेल को हमने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा होगा, तो हमें पता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा था। द अनियन सेल्स विच ए टिपिकल प्लांट सेल, डिस्टिंक्ट सेल वॉल्स थी उसकी आउटर बाउंड्री के फॉर्म में, जस्ट विद इन इट द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। Cells of human cheek have an outer membrane as a delimiting structure of the cell. Human cheek cell में सिर्फ outermost क्या था, outermost layer को cell membrane बोला था। Human cells में, cheek cells में कोई भी cell wall नहीं थी। Inside each cell a dense membrane bound structure nucleus, एक न्यूक्लियस स्ट्रक्चर दोनों सेल्स में था, चाहे अनियन सेल हो चाहे चीक सेल हो, दोनों में न्यूक्लियस था। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स थे, विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। Cells have a membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas the cell that lack membrane bound nuclei are prokaryotic. So दो तरीके के सेल बता दिए, जिन सेल्स में न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोटिक, जिनमें नहीं होता प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, तो सेल के अंदर, तो ये ओवरव्यू चल रहा है सेल का, मतलब सेल के अंदर क्या क्या चीजें होना, जनरल चीजें क्या क्या होती है सेल के अंदर। तो इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी होता है साइटोप्लाज्म में, जो कि सेल की को भरता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन द सेल्स टू कीप इट इन द लिविंग स्टेट। साइटोप्लाज्म सेल को जिंदा रखता है, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल। So sorry for the delay. Now again we are resuming. Besides the nucleus, eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structures called organelle. तो न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर, चाहे न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर और भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सब ऑर्गेनेलीज के नाम हैं कुछ। The prokaryotic cells lack such micro membrane bound organelle. प्रोकैरियोटिक सेल्स में ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही ये ऑर्गेनेलीज होते हैं।
राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल्स में मिलते हैं, दोनों में ही मिलते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में. Ribosomes are not found in the cytoplasm but also within two organelles. दो organelles में भी ribosomes मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक और ऑर्गेनेली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर भी राइबोसोम्स मिलते हैं. Cells differ greatly in size, shape and activities. Cell size, shape और activities में vary करते हैं. For example, mycoplasma smallest cells हैं, only 0.3 माइक्रोमीटर के लेंथ में है, while बैक्टीरिया की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है. Mycoplasma smallest, then bacteria. Bacteria could be 3 to 5 micrometer. Largest isolated single cells is the ostrich egg. And among multicellular organism, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर के हैं डायमीटर में और बड़े हैं as compared to bacteria. Then nerve cells are some of the longest. Nerve cells सबसे लंबे होते हैं. Cells also vary greatly in shape. Cells अपने शेप में vary करते हैं, अलग अलग तरह की उनकी शेप होती है. और they may be disc like, डिस्क जैसे हो सकते हैं, एक पॉलीगोनल हो सकते हैं, मतलब साइड्स, या हेक्सागोनल. ओके, पेंटागोनल मींस मोर देन 3 साइड्स. पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं सेल्स, जैसे एपिथेलियल सेल्स थे, कॉलमनर, क्यूबॉइडल हमने पढ़े थे, वैसे बोल रहा है. कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन ट्रायंगुलर सेल्स इरेगुलर भी हो सकते हैं. द शेप ऑफ द सेल्स में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. सेल्स की शेप उनकी फंक्शन के हिसाब से होती है. यहाँ पे 3-4 तरह के सेल्स दिए हुए हैं, उनकी शेप्स दी हुई हैं. नर्व सेल को ब्रांच्ड और लॉन्ग बताया है, दिखा रखा है. ट्रैकिड को प्लांट का जाइलम का सेल है, ट्रैकिड, इलोंगेटेड एंड सर्कुलर पिट्स हैं, सर्कुलर वॉल थिकनिंग्स हैं. जहाँ पे थिकनिंग नहीं है सेल वॉल की, वहाँ पर पिट्स है. मीजोफिल सेल्स को दिखा रखा है, बिल्कुल थिन सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट है. कॉलमनर सेल्स को दिखा रखा है कि लॉन्ग है, टॉल पिलर लाइक. वाइट ब्लड सेल्स को दिखा रखा है कि सर्कुलर है और न्यूक्लियस तरह तरह के हैं. डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूक्लियस आर देयर इन वाइट ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स को दिखाया है कि बाइकॉनकेव है, डिस्क शेप है. तो इस तरीके से सेल्स बताएं कि अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं. Then prokaryotic cells are represented by bacteria. Prokaryotic cells का example basically bacteria हैं. And इसमें माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है. माइकोप्लाज्मा को और एक और नाम दिया जा सकता है पीपीएलओ, बिकॉज माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ भी कहलाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज उसके कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं, फिक्स नहीं होती है. इट कैन चेंज इट्स शेप. इरेगुलर सेल वॉल होती है उसकी. जस्ट लाइक हम अगर मान लो ऑमलेट बनाते हैं, तो एग को जब हम फ्राई करते हैं तो इरेगुलर शेप में वो फैल जाता है. तो इसी तरह का माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ होता है. तो दैट इज इट्स नेम, व्हाई इट इज नेम सो. They are generally smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cells. ये छोटे होते हैं और ज़्यादा जल्दी डिवाइड कर सकते हैं. यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं. They may vary greatly in shape and size. प्रोकैरियोटिक सेल्स भी अलग अलग साइज के शेप के हो सकते हैं. 4 बेसिक शेप जो बैक्टीरिया की देखने को मिलती हैं वो बैसिलस है, रॉड लाइक, फोकस है, स्फेरिकल, विब्रियो है, कॉमा शेप, एंड स्पाइरिलम है, स्पाइरल. तो ये डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की, बिकॉज इनकी फिक्स्ड सेल वॉल है, तो इसलिए इनकी शेप भी फिक्स है.
तो बैसिलस बैक्टीरिया कैटेगरी के बैक्टीरिया रॉड लाइक होते हैं, कोकस कैटेगरी के बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होते हैं वो विब्रियो कहलाते हैं, एंड स्पाइरल जो शेप के होते हैं वो स्पाइरलम कहलाते हैं. Organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and function. प्रोकैरियोट की ऑर्गेनाइजेशन भी सिमिलर होती है, ऑल्दो प्रोकैरियोट वाइड वैरायटी ऑफ शेप और फंक्शन के हो, चाहे उनकी शेप अलग अलग हो बट उनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटी, इंटरनल स्ट्रक्चर सबका सेम और वर्क सबका सेम रहता है. Prokaryotes have a cell wall surrounding a cell membrane except in mycoplasma. सबके पास सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स में, बस माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म. जो फ्लूइड मैट्रिक्स अंदर भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म होता है. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम नहीं दिखाया, सिर्फ शेप वाला डायग्राम दिखा दिया है कि टिपिकल बैक्टीरिया को यहाँ रॉड शेप, यहाँ पर पीपीएलओ में सर्कुलर से डॉट, स्मॉल डॉट्स और बिग डॉट्स, बिग सर्कल्स बना दिए हैं. पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर. वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक हैं तो वो 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोस्कोप की डायमेंशन से भी कम है. और यूकैरियोटिक सेल का को दिखाया है, बड़े से यूकैरियोटिक सेल को, जो 10 टू 20 माइक्रोमीटर का है. ठीक है. द जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है प्रोकैरियोट्स में और नॉट एनवेलप्ड. उसके ऊपर कोई एनवेलप नहीं होती है. तो यानी कि कहने का ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस इज नॉट देयर, membrane bound structure is not there that is keeping the genetic material. Genetic material is freely lying in the cytoplasm. So, in addition, the genomic DNA, single chromosome, circular DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. तो जीनोमिक डीएनए तो रहता ही है, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम तो रहता ही, उसके एडिशन में और भी डीएनए सेल्स में रह सकते हैं, जिनको प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं. These smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. और प्लाज्मिड डीएनए यूनिक कैरेक्टर्स देते हैं उन बैक्टीरियाज को. वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. ऐसा कैरेक्टर है जो कि प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरियाज को मिलता है, जो कि है तरह तरह की एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस, क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर ऐसी जीन्स होती हैं जो कुछ ऐसी एंजाइम्स बना सकती हैं जो कि वो दवाई का असर उस बैक्टीरिया में होने नहीं देती हैं. बैक्टीरिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता. उनके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं. एंटीबायोटिक्स उन पे काम नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब ये है. यानी कि जैसे कि मान लो पेनिसिलिन का एग्जांपल लेते हैं. पेनिसिलिन एक सेल वॉल को रोकने वाली दवाई है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देती. पर अगर कोई पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होगा, उसके अंदर ऐसा डीएनए होगा अलग से, सर्कुलर डीएनए, अदर देन द जेनेटिक डीएनए जो प्रोकैरियोट में है, उस बैक्टीरिया में अलग से एक सर्कुलर पीस होगा अगर डीएनए का, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है, और उसके ऊपर अलग से एंजाइम होगी, एंजाइम बनने के लिए जीन होगी, जैसे जिसे जो कि पेनिसिलिन को तोड़ने के एंजाइम्स बना सकती है. यानी कि वो बैक्टीरिया अगर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एक्सपोज होगा और उसके सेल के अंदर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आती है, कैसे भी वो एब्जॉर्ब करता है पेनिसिलिन को, तो जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उस दवाई को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं. अगर वो उस दवाई का स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं तो वो दवाई उन बैक्टीरियाज पे कोई असर नहीं करती है. तो हमेशा जो भी एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल होता है प्लाज्मिड के फॉर्म में बैक्टीरियाज में, वो रेजिस्टेंस देता है एंटीबायोटिक के लिए, वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाता है. हायर क्लास में आप समझोगे कि दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए. ये प्लाज्मिड कभी कभी फॉरेन डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन कराने में भी हेल्पफुल होते हैं. मतलब कि ये एक तरह से डीएनए ट्रांसफर में भी काम करते हैं. एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए ट्रांसफर करने में भी प्लाज्मिड्स का रोल होता है. वैसे तो नॉर्मली हम जानते हैं बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं,
पर कभी कभी बैक्टीरिया में जो डाइवर्सिटी क्रिएट होने का रीजन ये भी है, बहुत मेजर रीजन, कि एक बैक्टीरिया से कोई पीस ऑफ डीएनए निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में जुड़ जाता है और दूसरे बैक्टीरिया को वो जीन्स मिल जाती हैं जो पहले बैक्टीरिया में थी, तो जेनेटिकली चेंज हो जाता है वो, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में मिलती है। नो ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज नहीं मिलती है प्रोकैरियोट्स में। लाइक वंस इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम। सिर्फ एक चीज मिलती है जो कॉमन है दोनों में, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में मिलते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोट्स अपने साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन्स बॉडी रखते हैं। इंक्लूजन्स मतलब जो भी जिस तरह का बैक्टीरिया होता है, अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो वो ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स बनाकर फूड को स्टोर करके अपने सेल साइटोप्लाज्म में रख सकता है। तो साइटोप्लाज्म में कुछ भी डिपोजिशन के फॉर्म में रहना, उसे इंक्लूजन्स बोलते हैं। अगर सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड को रिड्यूस करके सल्फेट ग्रैन्यूल्स रख सकता है अपने अंदर, सल्फर के क्रिस्टल्स रख सकता है। अगर नाइट्रोजनस बैक्टीरिया है तो नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स अंदर रख सकता है। तो इस तरीके से कोई भी बैक्टीरिया इंक्लूजन्स रखते हैं अपने अंदर, केमिकल्स के डिपोजिशंस रखते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन। सेल मेम्ब्रेन अंदर जाके कॉइल हो जाती है एक कोने पर और उसे मेसोसोम कहा जाता है। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। अब मैं एक लेबल डायग्राम आपको दिखाती हूँ बैक्टीरिया का, जिसमें ये सब प्रॉपर्टीज आपको आराम से समझ आ सकती हैं मैं किन की बात कर रही हूँ, क्या चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इसमें कोई भी आप डायग्राम ले लो, उसमें सेल वॉल होगी, देन कुछ फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको निकलते हुए। एक कोने पे सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फोल्ड हो गई है, उसे मीजोसोम कहा गया है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको। राइबोसोम्स मार्क कर रखे हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मार्क कर रखा है। पिलाई मार्क कर रखी है। पिलाई द मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होती हैं। सेल मेम्ब्रेन मार्क कर रखी है। सेल वॉल मार्क कर रखी है। ठीक है। कैप्सूल मार्क कर रखा है। किन किन बैक्टीरिया में कैप्सूल होता है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का वो यही सब चीजें बताएगा। एंडोस्पोर मार्क कर रखा है। फ्लैजिलम मार्क कर रखा है। इसमें मीजोसोम नहीं दिखा रखा, तो एक ऐसा डायग्राम देखते हैं जिसमें मीजोसोम दिखा रखे हैं। तो ये भी एक डायग्राम है। इसमें जो हम बात कर रहे थे मीजोसोम की, ये भी शो हो रहा है। ठीक है। मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस होते हैं मीजोसोम्स। एक कोने पे मेम्ब्रेन की सर्कुलर कॉइलिंग हो रहती है। इसका काम होता है बेसिकली जब रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया तब। अब नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की, वो मॉडिफाइड भी हो सकती है। बहुत सारे प्रोकैरियोटिक सेल में, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल्स में, हैव अ केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। उनकी सेल एनवेलप केमिकली कॉम्प्लेक्स होती हैं। सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर, 3 लेयर की होती है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय अ सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है, फिर एक सेल वॉल होती है, फिर सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है।
although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as single protective unit. तीनों मिलकर एक protective unit बन जाती हैं. Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to staining procedures developed by Gram-Wiss. ग्राम स्टेनिंग नाम का प्रोसीजर ग्राम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में बांट देता है. ये क्रिश्चियन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने डिवाइस किया था, डिस्कवर किया था. इसमें दो तरीके के बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, और ये सेल एनवेलप के बेसिस पे ही डिफरेंशिएट होते हैं. सेल एनवेलप दोनों बैक्टीरिया की डिफरेंट होती हैं. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल एनवेलप में ज्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन नाम का एक शुगर पाया जाता है. नाइट्रोजिनस शुगर है ये. तो पेप्टाइडोग्लाइकन वो ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होता है और थिक सेल वॉल होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता और लाइपोपॉलीसैकेराइड होती है, LPS. तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ग्राम स्टेनिंग के वक्त वो पिंक स्टेन लेते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ग्राम स्टेनिंग के वक्त वो पर्पल स्टेन लेते हैं. इस वजह से दो कैटेगरीज के बैक्टीरियाज आइसोलेट हो जाते हैं. Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath called the slime layer in some, while in others it may be thick tough called capsule. किसी किसी में जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है वो पतली और बिल्कुल लूज हो सकती है, स्लाइम लेयर कहलाती है. जिस किसी किसी में टफ हो सकती है, कैप्सूल कहलाती है. Cell wall determine the shape of the cell, provide strong structural support, plasma membrane and prevent bacteria from bursting or collapsing. Cell wall का काम strength देना है, देन उसको कोलैप्स होने से बचाना है. इन्वायरमेंट जब भी चेंज होता है बैक्टीरिया मर सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं, उस वक्त उन्हें बचाना सेल वॉल का काम है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नेचर की होती हैं जो वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती हैं. दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल बायलेयर की होती हैं और वो यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की टाइप की ही होती हैं स्ट्रक्चर में. सिमिलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मीजोसोम जो मैंने आपको बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बन सकता है, फोल्ड हो सकता है. तो वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले, इस फॉर्म में मीजोसोम एक कोने पर रह सकता है. ये सेल वॉल के सिंथेसिस में जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं बाइनरी फिशन के वक्त, तब काम आ सकता है. तो आज हम यहीं तक समझ रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. देन ऐसे ही जब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल समझाया है, फिर नेक्स्ट पेज पे यूकैरियोटिक सेल समझाया है, फिर चैप्टर में एक एक करके सारी ऑर्गेनेलीज समझाई हैं, एंड देन यू हैव the chapter will be completed on the explanation of every organelle. So this is the whole chapter all about. Okay, so I'm ending the meeting here. I'm ending the discussion here. Okay, I hope you understood it well. Okay, then thank you all.